नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। अजान पन्नाबद्धो, experts from the book Uncommon Wisdom, Anapanasati. He turned to the meditation practice that the Buddha recommended, Anapanasati or mindfulness of breathing. All the texts state that mindfulness of breath is especially used for countering a scattered and distracted mind to achieve more unified and refined state of mind. Anapanasati, a basic practice for most beginners, Buddha himself expressly used mindfulness of breathing as his primary meditation subject for the attainment of Nibbana. Seated comfortably, Bhikkhu Pannavadho began by placing his full attention on the normal cycle of breath, each inhalation followed by each exhalation. Breathing was a fixed and ongoing natural activity. He needed simply to relax and focus his attention on the tip of the nose. Being aware of each breath as it passed in and out through the nostrils, he made no attempt to control the breath. He wanted to focus on the natural and spontaneous rhythm of breathing and allow the resulting concentration to draw his mind inward. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। अजान पन्नाबद्धो, experts from the book Uncommon Wisdom, Anapanasati. He turned to the meditation practice that the Buddha recommended, Anapanasati or mindfulness of breathing. All the texts state that mindfulness of breath is especially used for countering a scattered and distracted mind to achieve a more unified and refined state of mind. Anapanasati, a basic practice for most beginners, Buddha himself expressly used mindfulness of breathing as his primary meditation subject for the attainment of Nibbana. Seated comfortably, Bhikkhu Pannavadho began by placing his full attention on the normal cycle of breath, each inhalation followed by each exhalation. Breathing was a fixed and ongoing natural activity. He needed simply to relax and focus his attention on the tip of the nose, being aware of each breath as it passed in and out through the nostrils. He made no attempt to control the breath. He wanted to focus on the natural and spontaneous rhythm of breathing and allow the resulting concentration to draw his mind inward. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अजान पन्नाबद्धो असामान्य बुद्धि पुस्तक के अंश। उन्होंने ध्यान अभ्यास की ओर रुख किया जिसकी बुद्ध ने सिफारिश की थी, आनापानासति या श्वास की सचेतना। सभी ग्रंथों में कहा गया कि सांस की सचेतना बिखरे हुए विचलित मन का मुकाबला करके अधिक लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। एकीकृत और परिष्कृत मन स्थिति। आनापानासति अधिकांश शुरुआती लोगों के लिए एक बुनियादी अभ्यास। बुद्ध ने स्वयं निवान की प्राप्ति के लिए अपने प्राथमिक ध्यान विषय के रूप में सांस की सचेतना का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया था। आराम से बैठकर भिक्षु पन्नाबद्धों ने अपना पूरा ध्यान श्वास के सामान्य चक्र पर केंद्रित करना शुरू किया। प्रत्येक सांस लेने के बाद प्रत्येक सांस छोड़ना। सांस लेना एक निश्चित और निरंतर चलने वाली प्राकृतिक गतिविधि है। उसे बस आराम करने और अपना ध्यान श्वास के सिरे पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। नाक नासिका के माध्यम से अंदर और बाहर आने वाली प्रत्येक श्वास की प्रति जागरूक रहना। उसने श्वास को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया। वह सांस लेने के लिए प्राकृतिक और सहज लय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और परिणामी एकाग्रता को अपने दिमाग के अंदर की ओर खींचने की अनुमति देना चाहता था। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अजान पन्नाबद्धो एक मॉन्क है। अनकॉमन विजडम असामान्य बुद्धि पुस्तक के से कुछ अंश लिए गए हैं। पत्री सर उस अंश के माध्यम से हमें कुछ बता रहे हैं। आइए दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पिछले अध्याय में भी हमने इस
पन्नाबद्धो मॉन्क के बारे हमने कुछ जाना था, आइए कुछ उसके बारे जानते हैं। उन्होंने ध्यान अभ्यास के रुख किया आनापानसति ध्यान, जिसकी बुद्ध ने सिफारिश की थी, जिसने बुद्ध ने बताया था आनापानसति या श्वास की सचेतना। जो श्वासों के साथ ध्यान करते हैं, जो पत्री सर ने हमें बताया, अपने श्वासों को देखना, उसके साथ ध्यान करना, उसे महसूस करना, उसके बारे में बता रहे हैं। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि सांस की सचेतना बिखरे हुए और विचलित मन को मुकाबला करके अधिक लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जब हम सांस के साथ ध्यान करते हैं तो हमारा विचलित मन जो स्थिर होकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं, तो ये उसके लिए उपयोगी है बता रहे हैं। आनापानसति अधिकांश शुरुआती लोगों के लिए ये बुनियादी अभ्यास है। ये पत्री सर यहाँ बता रहे हैं कि आनापानसति ध्यान जो है अधिकांश शुरुआती लोगों के लिए ये एक बुनियादी अभ्यास है, जिसे हम जो नए लोग नए ध्यानी आते हैं तो इस चीज को मैं उन लोगों से इस चीज से अवगत कराते हैं कि श्वासों के साथ ध्यान करना है तो वो उनके लिए उपयोगी है। बुद्ध ने स्वयं निवान की प्राप्ति के लिए अपने प्राथमिक ध्यान विषय के रूप में सांस की सचेतना का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया था। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो सांसों के माध्यम से ही ध्यान करते हुए उसकी स्थिति में पहुंचकर निवान की प्राप्ति की थी। आराम से बैठकर भिक्षु पन्नाबद्धों ने अपना पूरा ध्यान सांस के सामान्य चक्र पर केंद्रित करना शुरू किया। सांस के साथ ध्यान करना शुरू किया। प्रत्येक सांस लेने के बाद प्रत्येक सांस छोड़ना, यहाँ बता रहे हैं जो सांस ले रहे हैं उसके साथ सांस छोड़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सांस लेना एक निश्चित और निरंतर चलने वाली प्राकृतिक गतिविधि है, उसके बारे में पत्री सर हमें यहाँ बता रहे हैं। उसे बस आराम करने और अपना ध्यान सांस के सिरे पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। नाक नासिका के मध्य में अंदर बाहर से और अंदर जाने वाली जो सांस है उसको प्रति जागरूक रहने के लिए बताया। उसने श्वास को नियंत्रित करने का भी प्रयास नहीं किया। यह अजान पन्नाबद्धों ने जब ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने कभी भी अपने सांस को पकड़कर नियंत्रित करने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने सांस के साथ ध्यान किया। वह सांस लेने की प्राकृतिक और सहज लय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। जो श्वासों के साथ ही ध्यान को करते थे और परिणामी एकाग्रता को अपने दिमाग के अंदर की ओर खींचने की अनुमति देना चाहते थे। वो बाहर से अंतर्मुखी होकर अपने श्वासों के माध्यम से ध्यान करना चाहते थे। यहाँ पर पत्री सर ने इस अध्याय के माध्यम से दोस्तों हमें बताया कि आनापानसति ध्यान कितना महत्वपूर्ण है और कितना सरल है और कितना सहज है। तो दोस्तों जो पत्री सर ने हमें बताया कि आनापानसति ध्यान करना चाहिए नियमित रूप से प्रतिदिन, तो हमें भी इस अजान पन्नाबद्धों की तरह अपने को हम नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करें और अपने जीवन को आनंद में और सुख में बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।